Hello friend, myself Dr. Hemant Kumar Gupta, and this is our second lecture of the chapter 1, electric charge and field. So we will start with the section 1.5, the basic property of electric charge. Uh, we have seen that there are two type of charges, namely positive and negative, and their effect tend to cancel each other. So here we shall now describe some other property of electric charge. If the size of the charge bodies are very small as compared to the distance between them, अगर आपके दो चार्ज हैं अगर आपके दो चार्ज हैं सपोज दैट एक आपका हो गया Q1, कोई चार्ज है आपका Q1 और इनके बीच में आपके डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है Q2। मान लीजिए इनके बीच में जो डिस्टेंस R है इनके बीच में जो डिस्टेंस R है वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ वेरी वेरी फार ग्रेटर देन as compared to the size of the charge so what will happen, we call the charge as a point charge। हम क्या बोलेंगे, चार्ज को पॉइंट चार्ज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है 1.51 में हम चल रहे हैं एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस, मतलब चार्जेस को हम कैसे ऐड करते हैं और कैसे उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। वी हैव नॉट as yet given a quantitative definition of charge. We shall follow it up in the next section. So if a system containing two point charge Q1 and Q2 and the total charge of the system is obtained simply by adding algebraically Q1 and Q2, means अगर Q1 माइनस Q2 है तो आप लिख दोगे Q1 प्लस माइनस Q2 और Q1 माइनस Q3 है तो आप लिखोगे Q1 प्लस ऑफ माइनस Q3। if a system of n charge Q1 Q2 Q3 so on of Qn, then the total charge of the system क्या हो जाएगा, Q1 plus Q2 plus Q3 plus so on of Qn। charge has magnitude but no direction as similar to the mass, so there is a one difference between the mass and charge। the mass of body is always positive। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मास उसका -50 किलो है ना, -50 kg है या -50 kgf है ना। वेयर चार्ज जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कोई आपका सिस्टम है जिसमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस +1 +2 -3 +4 -5, 5 चार्ज हैं। तो हम टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, इनको एल्जेब्रिकली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो +1 +2 -3 +4 -5, तो कितना आएगा, +1 और +2 हो गए +3 +4 7 और ये माइनस माइनस हो गए -8 7 -8 -1, टोटल चार्ज क्या आ गया, -1 इन द सेम यूनिट। नेक्स्ट सेक्शन है, चलिए वो है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कैसा रहता है आपका, कंजर्व्ड रहता है। वी हैव ऑलरेडी हिंटेड टू द फैक्ट दैट व्हेन टू बॉडीज आर चार्ज बाय द रबिंग, सो क्या होता है कि ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो न्यू चार्ज कोई भी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय नहीं होता है, सिर्फ चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ओके, व्हेन वी रब टू बॉडीज, व्हेन what one body gains in charge and other body loses within an isolated system consisting of many charged bodies, so the total charge of the isolated system is always conserved। so the conservation of charge has been established experimentally। the proton and electron thus created have equal and opposite charges and the total charge is 0 before and after the creation, है ना। next section है quantization of the charges। experimentally it is established that all free charges are integer multiples of a basic unit of charge denoted by E। basic unit of charge की हम किससे डिनोट करते हैं, E से। thus charge Q on a body is always given by Q is equal to n into E। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, इसको थोड़ा जूम करेंगे। when n is integer positive or negative, the basic unit of charge is the an electron और प्रोटॉन कैरीज। बाय कन्वेंशन हमने क्या माना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को क्या माना है, नेगेटिव, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज रिटर्न एज -E एंड प्रोटॉन को क्या लिखते हैं हम, +E लिखते हैं, है ना। चलिए, द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E इज टर्म्ड एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन बोलते हैं, है ना।
In the international system SI of a unit of charge is called the coulomb and it is denoted by the symbol C. A coulomb is defined in terms of the unit of electric current which you are going to learn in the subsequent chapter. इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट को नेक्स्ट चैप्टर में. In the term of this definition, 1 coulomb is the charge flowing through a wire in 1 second if the current is 1 milliampere. In the system, the value of the basic unit of the charge is 1.602192 into 10 to the power minus 19 coulomb. Thus, there are about 6 in 10 to the power 18 electrons in a charge of 1 coulomb. तो 1 कूलाम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन. दैट इज़ वेरी 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 हाई. इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द चार्ज ऑफ द लार्ज मैग्नीट्यूड आर सेल्डम इनकाउंटेड, हैंस वी यूज़ अ स्मॉलर यूनिट. तो इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब पढ़ते हैं तो हम स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं. स्मॉलर यूनिट कौन सी होती हैं? माइक्रो कूलाम. कौन सी होती हैं? 1 माइक्रो कूलाम. 1 माइक्रो कूलाम होता है एक स्मॉलर यूनिट में, है ना. 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 1 माइक्रो कूलाम इज 10 टू द पावर, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर माइनस 6, ये हो गया 10 टू द पावर -6 कूलाम. तो 1 माइक्रो कूलाम इज 10 टू द पावर -6 कूलाम एंड 1 माइक्रो कूलाम इज 10 टू द पावर -3 कूलाम. तो इफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली बेसिक चार्ज इन द यूनिवर्स, all the observable charges have to be the integer multiple of E. Thus if a body contain n1 electrons and n2 proton, तो टोटल चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रॉन के कारण? n1 इंटू माइनस ई और प्रोटॉन के कारण n2 इंटू ई. तो टोटल क्या हो जाएगा? n2 माइनस n1 इंटू ई. समझ आ रहा है नहीं? तो n1 n2 क्या है? इंटीजर्स हैं. देयर डिफरेंस इज आल्सो अ इंटीजर. तो स्टेप साइज E इज E is however very small because at the microscopic level we deal with the charges of few micro coulomb. मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल जब हम पढ़ते हैं दो लेवल होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक एक मैक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक होता है क्या होता है? माइक्रो सूक्ष्म, और मैक्रो होता है स्थूल. तो एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल वन डील विद द चार्ज दैट आर न्यूमरस कंपेयर्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सिंस E is equals to 1.6 × 10⁻19. A charge of magnitude say 1 micro containing something like 10⁻13 times the charges. At this scale, the fact that the charge can increase or decrease only in the units of E is not very different from saying that charge can take continuous value. Okay? चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं. इसको थोड़ा जूम करेंगे, समझ नहीं आ रहा है अभी ये. चलिए क्वेश्चन है, ले लेते हैं. 2 क्वेश्चन हैं आपके, तो इस क्वेश्चन को लेंगे. पहला क्वेश्चन है, इफ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन if 10 to the power 9 electron move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? देखिए इसका मतलब है यदि 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में एवरी सेकंड जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा कि 1 कूलाम का चार्ज ट्रांसफ़र हो जाए. चलिए इन 1 सेकेंड 10 to the power 9 electrons are move out from the body. Therefore, the charge given out in the 1 second is 1.6 10 to the power -19 into 10 to the power 9. That is 1.6 10 to the power -10 coulomb. चलिए, so the time required to accumulate a charge of 1 coulomb can be estimated by 1 coulomb divided by time 1.6 10 to the power -10 coulomb per second. तो कितना आ गया? 6.25 10 to the power -19 सेकेंड. मतलब इतना टाइम लगेगा. अब सेकेंड को किस में बदल दो? सेकेंड को चेंज करते हैं हम किस में? ईयर्स में. पहले हम घंटे में चेंज किया तो 24 का गुणा कर दिया, फिर ईयर्स में चेंज किया तो 365. कितना ईयर्स आ गया भाई? 198 ईयर्स. मतलब 10 टू कलेक्ट अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम अ बॉडी फ्रॉम विच द 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट एवरी सेकेंड विल नीड अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स. तो 1 कूलाम इज देयरफॉर अ वेरी लार्ज यूनिट फॉर मैनी प्रैक्टिकल पर्पस. मतलब 1 कूलाम को ट्रांसफ़र होने में कितने साल लगेंगे? 200 साल. अगर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 1 सेकंड में, तो 1 कूलाम का चार्ज ट्रांसफ़र होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 200 ईयर्स. तो ये प्रैक्टिकल रीजन से बहुत ही छोटी, बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है ना. चलिए, it is however very also important to know that what is roughly the number of electrons contained in the piece of 1 cubic centimeter of material
A cube piece of copper side of 1 centimeter contain about 2.5 into 10 to the power 24 इलेक्ट्रॉन्स. इसको रफली आप मेमोराइज कर लीजिएगा, अदरवाइज ये नीडेड तो नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3. हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज़ देयर इन ए कप ऑफ वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. फिजिक्स में इस तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे. तो लेट अस एज्यूम दैट द मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर इज़ 250 ग्राम. मान लीजिए कि एक कप वाटर का जो मास है वो 250 ग्राम है. तो मॉलिकुलर वेट क्या होता है वाटर का? H2O से निकालेंगे. ऑक्सीजन का 16 हो गया, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1. क्या होता है देखिए, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि H2O है ना, H2O, इसका मॉलिकुलर वेट निकालना है. तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1. तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइड 1 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? 16. ऑक्सीजन का क्या होता है? 16. तो 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 प्लस 16 इज़ हाउ मच? कितना आएगा ये? 18. तो H2O का मॉलिकुलर वेट कितना हो गया इस तरीके से? 18 हो गया है ना, 18 ग्राम है. देयरफॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ वाटर इज 250 डिवाइड बाय 18 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, क्योंकि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं. चलिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले 1 कप में कितने? 250 बाई 18 इंटू दिस. तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम. तो 10 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन एटम हो गए, 1 ऑक्सीजन एटम हो गए. मतलब क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 10 क्या हो गए? प्रोटॉन हो गए. तो हैंस द टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्ज द सेम मैग्नीट्यूड. इट इज इक्वल टू द 250 डिवाइड बाई 18, 6.02 इंटू 10 to the power 23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू -19. तो कितना आ गया? 1.34 10 टू द पावर 7 कूलाम. इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और इतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे. किसमें? एक कप ऑफ वाटर में. चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम. थोड़ा सा इसको ऊपर लेंगे. कूलॉम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होता है. कूलॉम लॉ इज ए क्वांटिटिव स्टेटमेंट about the force between 2 point charge. When the linear size of charge bodies are much smaller than the distance separating them, मैंने बताया था कि जब लीनियर साइज जो है बॉडीज़ का वो उनके बीच की डिस्टेंस की तुलना में बहुत छोटा है, तो साइज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं. उनको क्या मान सकते हैं हम? पॉइंट चार्ज मान सकते हैं. तो कूलाम मेजर्ड द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज and found that it varied inversely as a square of the distance between the charges and was directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and acted along the line joining the two charges. Thus, if the 2 point charges q1 q2 are separated by a distance r in a vacuum, the magnitude of the force between them F is given by F is equal to k q1 q2 by r square. How did Coulomb arrive at this law from this experiment? Coulomb used a torsion balance for measuring the force between two charge metallic. इसको जूम करना पड़ेगा, अभी आपको सही दिखेगा थोड़ा सा, है ना. चलिए, तो when separation between the two sphere is much larger than the radius of each sphere, the charge sphere may be regarded as a point charge. तो suppose that कूलाम ने ये कैसे निकाला, इसको देख लीजिए कि सपोज दैट द चार्ज ऑन अ मेटलिक स्फीयर इज q. मान लीजिए कि एक मेटलिक स्फीयर पे क्या है? q चार्ज है. इफ़ द स्फीयर इज पुट इन कॉन्टैक्ट विद द आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर देन द चार्ज विल बी स्प्रेडेड ओवर द टू स्फीयर. तो बाय सिमेट्री क्या हो जाएगा? चार्ज दोनों पे सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो q का क्या होगा? q बाई टी, q आउट 2, और q बाई टी का क्या होगा? q बाई 2 का q बाई 4, q बाई 2 का q बाई 4 होगा. तो Coulomb varies the distance for a fixed pair of charges and measured the force for different separations. He then varied the charges in pairs and keeping the distance fixed for, पहले उन्होंने चार्ज को वेरी किया, फिर डिस्टेंस को फिक्स किया, फिर डिस्टेंस को वेरी किया, चार्ज को उन्होंने फिक्स रखा. इस तरीके से he will able to find out the relation between the two charge force of the two charges. Okay.
तो Coulomb law, simply mathematical statement, was initially experimentally arrived at the manner described above, while the original experiment established at the macroscopic scale. It has also been established down to subatomic level. R is equals to 10 to the minus 10 m. So K is a constant. Coulomb law can now be employed to furnish a definition of unit of charge. In the relation K is arbitrary, we can choose any positive value of K. The choice of K determines the size of unit of charge. In SI unit, the value of K is about 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. The unit of charge that result from this choice is called a Coulomb, which we defined earlier in the section. Putting the value of K in equation 1.1, we see that Q equal to Q2 equal to 1, R equal to 1. So we'll find out F is equals to 9 into 10 to the power 9 Newton. So thus 1 Coulomb is the charge when placed at a distance of 1 meter from the another charge of the same magnitude in a vacuum experiences an electric forces of repulsion. अगर दोनों चार्ज सेम कैटेगरी के हैं आपके तो कौन सा फोर्स लगेगा आपका? रिपल्सन का फोर्स लगेगा. 9 into 10 to the minus 9 into 10 to the 9 Newton. So 1 Coulomb is evidently too big unit to be used in practice. In electrostatic, one use similar units like 1 millicoulomb or 1 microcoulomb. The constant K is 1 upon 4 pi epsilon 0. So F is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 for the convenience. 1 upon 4 pi epsilon 0 का वैल्यू क्या आया? कन्वीनियंस के लिए हमने इसको मान लिया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 को क्या मान लिया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. तो कूलाम में लिखा एप्सिलॉन 0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0 ऐसा यूनिट्स में क्या होती है? 8.854 10 टू द माइनस 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. हम इसको भी जूम करेंगे थोड़ा सा. चलिए इसको जूम कर लेते हैं. जूम के बिना तो वो आपको दिखेगा नहीं ना बोर्ड पे. सिंस फोर्स क्या है? वेक्टर है, तो इट इज़ बेटर टू राइट द कूलॉम लॉ इन अ वेक्टर नोटेशन. तो हम क्या होगा? कूलॉम लॉ कैसे लिखेंगे? हम वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे. लेट द पॉजिटिव वेक्टर्स ऑफ द चार्ज Q1 एंड Q2 बी द R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली. ये देख लीजिए आप. Q1 पे क्या है? R1 है पोजीशन वेक्टर, और Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है? R2 मान लीजिए. तो वी डिनोट द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू द Q2. किस पर फोर्स? Q1 पर फोर्स किसके कारण? Q2 के कारण. क्या होगा? F12. F12 किस पर फोर्स है? चार्ज 1 पर. किसके कारण? चार्ज 2 के कारण. F21 क्या है? फोर्स किस पर है? चार्ज 2 पर. किसके कारण? F1 के कारण. ये ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन F12 मतलब फोर्स 1 पर है 2 के कारण, तो डायरेक्शन कहाँ होगी? इस साइड, लेफ्ट साइड में. और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? राइट साइड में. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? R21 R2 माइनस R1. चलिए अब क्या 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 हैव बीन नंबर्ड 1 एंड 2 फॉर द कन्वीनियंस. द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2 को हमने वेक्टर मान लिया क्या? R21. इन द सेम वे द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1 हमने क्या मान लिया? इसको. अगर इफ़ द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन का. ये कौन सा फोर्स लग रहा है दोनों चार्ज के बीच में? रिपल्सन का. अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन का. तो कौन सी हो गई? R21 कैप. ये अट्रैक्शन का फोर्स है और ये रिपल्सन का फोर्स हो गया. चलिए, सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स R21 एंड R1 नोटेड बाय R21 एंड R12 रिस्पेक्टिवली. मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर क्या होता है? हमेशा वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ द वेक्टर. तो वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ द वेक्टर. तो R21, तो Coulomb force law between the 2 point charge Q1 and Q2 located at the R1 and R2 respectively. वेक्टर में क्या लिख सकते हैं इसको? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 R square 21 into unit vector R21. चलिए, some remarks on the 1.3 are relevant. Equation 1.3 is valid for any sign of Q1 Q2 whether positive or negative. If Q1 Q2 are the same sign, सेम साइन के होंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा? मैंने बताया अभी रिपल्सन का लगेगा. और अपोजिट के होंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा? इन पे अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा. ठीक है. तो कूलॉम लॉ आल्सो एग्रीज विद द न्यूटन थर्ड लॉ. F12 इज इक्वल्स टू द माइनस ऑफ F21. तो न्यूटन थर्ड लॉ को भी एग्री कर रहा है ये, है ना. यही तो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ था कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया. यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ था.
चलिए नेक्स्ट इसको हम जूम करेंगे। फिर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे 1.4। इसमें है कि कूलॉम लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज एंड न्यूटन लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस। ठीक है, बोथ हैव इन्वर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, दोनों का इन्वर्स स्क्वायर को फॉलो करते हैं। ठीक है, between the charges and masses respectively. Compare the strength of these force by determining the ratio of their magnitude. Okay. For an electron and proton first. Okay. For two protons second. Okay. Estimate the acceleration of the electron and proton due to the electrical force of their mutual attraction when they are 1 angstrom apart. चलिए, the electric force between electron and proton is given by the relation, दोनों का चार्ज सेम होता है, दोनों का चार्ज क्या होता है, सेम। तो एफ ई इज इक्वल्स टू -1/4πε0 ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वेयर द नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है। द करस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ एम पी एम ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर, वेयर एम पी एम ई क्या है, मासेस हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्टिवली। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे एफ ई को एफ जी से, तो क्या आएगा ई स्क्वायर 4πε0 जी एम पी एम ई। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सारी वैल्यू हमको मालूम है, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एप्सिलॉन 0, 4 पाई और ई का मास। तो ये आएगा 2.4 10⁻39। अब आप देखिए कितना ज़्यादा है, एफ ई बाय एफ जी, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स आर फार फार फार, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन दी ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत लाइट होता है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए कई बार महसूस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लाइट होता है। अब दूसरा बात कर रहे हैं किसके बीच में, सिमिलर रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स और टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात कर लेंगे तो यहाँ प्रोटॉन का जाएगा, तो ये कितना आ गया 1.3×36। तो हाउएवर इट मे बी मेंशन्ड हियर द साइंस ऑफ द टू फोर्सेस आर डिफरेंट। फॉर टू प्रोटॉन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, कूलॉम फोर्स इज रिपल्सिव। ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, लेकिन कूलॉम फोर्सेस तो अगर सेम साइज के होंगे तो कैसा होगा, सेम साइन के हैं, दोनों सेम ही हैं तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। So the actual value of these forces between the proton inside a nucleus is between two proton is 10 to the power minus 15 meter inside a nucleus are F E is equals to 230 Newton, whereas F G is 1.9 10 to the power minus 34. The dimensionless ratio of the two forces shows that the electric forces are enormously stronger than the gravitational forces. अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस F exerted by a proton on an electron is same in the magnitude to the force exerted by an electron on a proton. Thus the mass of electron and proton are different. Thus the magnitude of the force is 1/4πε0 E square by R square. ये आ गया फोर्स यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। F इज इक्वल्स टू एम ए, तो A इज इक्वल्स टू F बाय एम, ये इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लीजिए आप, यहाँ से प्रोटॉन के लिए निकाल लीजिए, फोर्स तो सेम रहेगा। तो ये आ गया एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन के लिए और ये आ गया एक्सेलरेशन आपका प्रोटॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 to the power minus 31 किलोग्राम और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10 to the power minus 27 किलोग्राम। चलिए, समझ आया ये आपके किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में जो आएगा वो आप कमेंट में डालेंगे लेक्चर के, तो आई विल आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर, और आई कैन आल्सो आंसर इन द कमेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इसको जूम करेंगे। अगेन ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अ चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए, ये देखिए ये वाला ए, इज सस्पेंडेड बाय नायलॉन थ्रेड से सस्पेंडेड है। अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल इज ब्रॉट क्लोज। यहाँ से इंसुलेटिंग हैंडल से क्या ला रहे हैं, क्लोज ला रहे हैं, टू ए सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड, जो भी रिपल्सन होगा नोटेड कर लिया उसको। इस स्फीयर ए बी आर टच बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी। अब ए और बी को किससे टच कर रहे हैं, ये देखिए अनचार्ज स्फीयर सी और डी से टच कर दिया, सी से और डी से, तो क्या होगा, इनका जो चार्ज होगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जो डिस्टेंस है, सेपरेशन को हमने आधा कर दिया, सेपरेशन इनके बीच में कितना कर दिया, 5 सेंटीमीटर कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि फोर्स क्या, देखिए चार्ज आपने दोनों का हाफ हो जाएगा। क्यों चार्ज हाफ हो जाएगा, क्योंकि चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q/2 और Q/T हो जाएगा, और डिस्टेंस आपने हाफ कर दी, डिस्टेंस आपने क्या कर दी, हाफ कर दी, तो वो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अनचेंज रहेगा फोर्स। इसको देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
नहीं सॉरी, नेक्स्ट में नहीं, इसी को अभी देखते हैं नेक्स्ट में। चलिए यहाँ आप लगाएंगे इसको, तो ये थोड़ा सा जूम हो गया। अब इसको देखते हैं, ज़्यादा ही जूम हो गया, थोड़ा सा कम करेंगे। अब इसको देखो, लेट द ओरिजिनल फोर्स इज 1/4πε0 क्यू डैश बाय आर स्क्वायर। अब आपने क्या कर दिया, चार्ज को आपने शेयर कर दिया, तो क्यू बाई 2 क्यू डैश बाई 2 और r/2 डिस्टेंस आधी कर दी, तो ये नीचे आएगा 4, ऊपर हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फोर्स आर सेम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए ड्यू टू द बी रिमेन अनअल्टर्ड, सेम रहा, है ना। तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करके कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना, कूलॉम लॉ का यूज़ करते हुए। अब है फोर्स बिटवीन दी मल्टीपल चार्जेस। अब देखिए, अगर आपके मल्टीपल चार्जेस हैं तो इनके बीच में फोर्स कैसे लगेगा। द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस गिवन बाय द कूलॉम लॉ। हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज वेयर देर आर not one but several charges around. Consider a system of n stationary charges. What is the force on q1 due to the q2, q3 and so on of qn? तो Coulomb law is not enough to answer this question. तो हम क्या करेंगे, it is verified that the force on any charge due to the number of other charges is the vector sum of the all the forces on that charge due to the other charges. Take one at the time. So the individual forces are unaffected due to the presence of the other charges. This is termed as a principle of superposition. इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक्सटेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ज लेते हैं Q1, Q2 और Q3। Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस क्या है, R। Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस और वेक्टर है r₁2। Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस है r₁3 और वेक्टर है r₁3। और यहाँ पे Q1 पर Q3 के कारण जो फोर्स लगेगा वो हो गया F13, हो गया F13, ये जा रहा है F13। और Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा F12। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, F12 प्लस F13। तो F12 और F13 दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स। देख लेते हैं ये, चलिए इसको देख लेते हैं ना। तो विच अगेन इज द कूलॉम लॉ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू द Q3। तो F इज इक्वल्स टू F12 प्लस F13। 12 क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 r12 का होल स्क्वायर r12 कैप प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 r13 का होल स्क्वायर r13 कैप। तो अभी आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अब n चार्ज के कारण, मतलब F1 पर अगर आप निकालोगे फोर्स n चार्ज के कारण, तो 1/4πε0 Q1 Q2 r12 का होल स्क्वायर r12 कैप प्लस Q1 Q3 r13 का स्क्वायर प्लस r13 कैप प्लस Q1 QN r1n का स्क्वायर और r1n कैप। तो इस प्रकार से इसको जनरलाइज कर देंगे हम वेक्टर सम को। द वेक्टर सम इज obtained as a usual by parallelogram law of addition of vectors. So all of the electrostatics is basically a conjugance of the Coulomb law and the superposition principle. तो हम सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल होंगे उनमें हम Coulomb law और सुपरपोजिशंस के प्रिंसिपल की सहायता से हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कराऊंगा, बिकॉज वीडियो काफ़ी लॉन्ग होती है, हाफ एन आवर बहुत होता है एक लेक्चर के लिए। तो अभी आप फ्रेंड्स प्लीज़ टेल मी, आर यू स्टडिंग और नॉट। हम NCERT का पूरा बुक मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। आई एम एक्सप्लेनिंग द ऑल NCERT फिजिक्स बुक। तो इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी प्लीज़ comment on the comment section and I will answer in the comment or in the next lecture also. Okay, till now, thank you friends.